پیکج دیں گے جو انشاءاللہ 22 تاریخ سے ہم اس پہ بانٹنے کا کام شروع کرنے لگے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. تو اس میں باقاعدہ ڈیٹیلز دینی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کارڈ استعمال کرنا ہے. اس کارڈ کے تحت وہ کسی بھی پرائیویٹ جو امپینل پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، اور امپینل پرائیویٹ ہاسپٹل صرف ان کے علاقے کے نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں، ایک بندہ راجن پور کا ہے اور وہ لاہور آیا ہے اور لاہور آ کے بیمار ہو گیا، یہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، بچے کی طبیعت خراب، تو یہاں کے جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں ہماری انشورنس اسکیم میں، یہ اس ہسپتال میں جا کے یہ سہولت لے سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو راجن پور کا ہے اس کو صرف راجن پور کی سہولت ملے گی، پنجاب کے کسی بھی امپینلڈ ہاسپٹل کے اندر وہ یہ سہولت لے سکتا ہے. یعنی جب ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں یہ کارڈ آ جائے گا تو اس کارڈ کی تحت یہ سہولت پنجاب کے کسی بھی نجی ہسپتال جو اسٹیٹ لائف انشورنس امپینل کرے گی، اس ہسپتال سے یہ جا کے سہولت لے سکتا ہے. اس کارڈ کی لاگت 7,20,000 روپے، یعنی جب یہ ہم کارڈ دے دیں گے تو اس بندے کے پاس 7,20,000 روپے کا ایک کارڈ ہوگا، جس میں سالانہ یہ اس کے اندر رقم ہوگی، اور سالانہ اس رقم کے تحت وہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا یا اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ شروع بسم اللہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا سب سے پسماندہ علاقہ ہے وہ راجن پور کا ہے، اور سب سے زیادہ پرابلم راجن پور کے علاقے سے شروع کر رہے ہیں. ڈی جی خان، اس کے بعد مظفر گڑھ، اور پھر مظفر گڑھ کے بعد ہم ملتان میں کرنے لگے ہیں. اب جب یہ ان 4 علاقوں کے اندر ہم کارڈ دیں گے تو تقریباً مارچ کے آخر تک ہم 8 لاکھ فیملیز کو کارڈ دے چکے ہوں گے. یعنی بائی اینڈ آف مارچ ہم 8 لاکھ کارڈ، اور جب ہم 36 اضلاع جو ہم انشاءاللہ اس سال کے اندر یعنی 2019 کے اندر ہم 36 اضلاع کے اندر سب کو کارڈ دے دیں گے تو 72 لاکھ فیملیز. اب 72 لاکھ فیملیز میں ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی سائز کا، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 5 ہیں. آن این ایوریج 3.5 کروڑ آبادی کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ ہمارا پہلا فیز ہے. اور جب ہم یہ دے دیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ 30% آبادی جو ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر کارڈ ہے تو یہ سرکاری اسپتال میں نہیں جا سکتے، یہ سرکاری اسپتال کی بھی سہولت لے سکتے ہیں جس میں ان کو کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ اپنا نجی اسپتال میں جا کے یہ سہولت لے سکتے ہیں، اور اس اسپتال میں سہولت کا یہ ہے داخلہ ان کا ہوگا، مریض کا جتنا عرصہ علاج ہے وہ ہوگا، اور جب وہ ڈسچارج ہو گئے تو 5 دن کی دوائی بھی ساتھ ملے گی. ایک مریض جب پہنچے گا کسی نجی اسپتال میں تو اس کو کرایہ بھی دیا جائے گا، کیونکہ غریب آدمی کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کہیں جگہ پہنچنے پہ کرایہ دیے جائے. تو 1,000 روپیہ جو ہے وہ بطور کرایہ بھی رکھا گیا. اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ان مشکل وقتوں سے بچائے، لیکن یہ کہ اگر کسی کے گھر فوتیدگی ہو جائے تو ہم نے بیریل الاؤنس بھی رکھا ہے. غریب آدمی کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں فوت ہو گیا تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، تو 10,000 روپے علیحدہ اس کے اندر بیریل الاؤنس رکھا ہے. اس کارڈ کی نوعیت یہ ہے کہ یہ 9 بیماریوں کو کور کرتا ہے. یہ تقریباً 9 بیماریوں کو کور کرتا ہے، اور یہ 9 بیماریوں میں جو سب سے اہم ایک بیماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہماری ٹریفک کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہیڈ انجریز بڑی کامن ہوتی ہیں، اور ہیڈ انجری کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ جو اس تکلیف کا علاج نہیں کر سکتے. اس میں نیورو سائنسز کی علیحدہ پورا پیکج رکھا ہوا ہے کہ ان کو اگر نیورو سائنسز کی کوئی کسی قسم جس میں سی ٹی اسکین ہے، آپریشن ہے، کارڈیالوجی، ہارٹ کا پرابلم ہے، اسٹینٹ چاہیے، اور اسٹینٹ ایون دی منی فار دیٹ ہیز بین پٹ انٹو دس کارڈ. تو بیسکلی جو ایک غریب آدمی کی زندگی میں جو مشکل بیماریوں کا مسئلہ مسائل وہ اس کا سارا حل انشاءاللہ اس کارڈ کے اندر ہوگا. اور یہ کارڈ جو ہے اس میں ایک سوال جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کن کو دینا ہے. اب اس کے لیے خاص طور پہ ایک سروے ضرور ہوا تھا 2011 میں. اب مزید اس کے بعد ایک اور سروے ہونا شروع ہوا ہے جس کے اندر باقاعدہ اوتھینٹیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں اور مزید جن کے نام ایڈ ہو رہے ہیں، وہاں نادرا اور جو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اپنے علاقوں کے ہیں ان کو مزید اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ واقعی غریب ہیں اور کیا یہ واقعی پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. ان کے سیمپل جو ہیں وہ
لیے جا رہے ہیں اور ویریفائی. ان ساری چیزوں میں کیونکہ کچھ وقت لگا تھا, تبھی جب سے ہم نے اناؤنس کیا یہ 6 مہینے ہمیں لگے, کیونکہ ہمیں نیگوشیشنز بھی کرنی پڑتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. جو کمپنی ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم نے جو حفاظتی تدابیر میرے لیے بہت اہم ہے کہ ایک خاتون جب حاملہ ہو تو اس کی اینٹی نیٹل کور اس کو ضرور ملے. وہ بھی اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے کہ بھئی اس کو اینٹی نیٹل کوریج ملے. جو حمل کے دوران اس کو دوائی چاہیے ہوگی وہ بھی اس کو اس درمیان ملے گی. جب وہ لیبر میں جائے گی تو لیبر کے بھی اس کے اندر پیسے, خدا نہ خاصہ سیزیرین ہو تو سب کے پیسے اس کے اندر شامل ہیں. تو جہاں تک ماں اور بچے کا تعلق ہے اس کے اندر ایک پورا پیکج ہے 7,20,000 کے اندر, جس میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے لیے مکمل اپنا علاج کروا سکتی ہے جس وقت سے اس کی کنسیپشن ہے, رائٹ, وچ از نون ایز بیسکلی سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا اس کے اندر. ہم مطلب یہ صرف یہاں نہیں ختم ہوگا. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ہماری اگلا قدم ہے, جب ہم وی ہیو لکڈ آفٹر دا پورسٹ آف پور, پھر انشاءاللہ جو ہمارا اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں آج کل, اور پروفیشنل لوگ ہیں. 70-80 ہزار بھی تنخواہ ہو تو گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ کہ ہم کس طریقے سے ایک پیکج دیں جس کے اندر جس طرح خان صاحب نے کیا ویری اسمال پارٹ کین بی گیون بائی دا پرسن, لیکن اسی قیمت کا ایک مزید ہم انشورنس کارڈز جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے. لیکن جو مین اس وقت ہمارا تھرسٹ ہے وہ ہے کہ غریب آدمی کو ہم نے کس طرح اس مشکل ٹائم میں سے وقت پہ گزارنا. اور یہ جو ہے بیسکلی ہمارے 3 سال کا کانٹریکٹ ہے, اس لیے جب کارڈ مل جائے گا تو 3 سال تک اس کے پاس ہوگا اسی قیمت کا, اور پھر 3 سال کے بعد مزید اس کی رینیول ہوگی. اور یہ بسم اللہ ہم انشاءاللہ 22 فروری سے شروع کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راجن پور ڈی جے خان کی طرف سے شروع کریں گے, پہلے 4 اضلاع جو ہیں وہاں سے, اور پھر آپ کو جو باقی اضلاع ہیں ہمارے وہ وہاں سے جو پسماندہ علاقے زیادہ ہیں انہیں سیکنڈ فیز کے اندر, جیسے ہمارا اپنا میاں والی ہے, اپنا چنیوٹ, اپنا جھنگ, فیصل آباد کا علاقہ, ان سارے علاقوں کے اندر پھر اگلے کارڈ شروع ہوں گے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سال کے آخر تک سارے کارڈ جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. اور میں پھر دوبارہ دہراتی جاؤں, 72 لاکھ کارڈ دیا جائے گا, اور 72 لاکھ کارڈ انشور کرے گا کہ کم سے کم 3.5 کروڑ کی آبادی جو ہے اس کو اس کا فائدہ ملے یا مستفیض ہوں اس سے. اور یہ 3.5 لاکھ کی آبادی اور 30% جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ خود امیجن کریں ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو تقریباً 50 سے 55% کی آبادی کو ایک کوریج مل جائے گی. 30% کو تو آلریڈی ہاسپٹلز کیٹر کر رہے ہیں, لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہسپتال میں اگر جگہ نہیں ہے اور آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں تو دیٹ از آلسو بینگ کیٹرڈ بائی دا گورنمنٹ بیکاز دا گورنمنٹ از پیئنگ فار اٹ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو, جی آپ یہ بتا دیجیے کہ نون لیگ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل طور پر جو ان کا منصوبہ ہے, جی یہ بتا دیں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ منصوبہ ان کا ہے, واضح کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا منصوبہ ہے یا نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ان کا منصوبہ ہے. اچھا ایک سیکنڈ بیٹا, میں باری باری بات, جی نون لیگ والی بات بتا دیں, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ منصوبہ ان کا ہے. یہ اس میں یہ بات ایک اور ایڈ کرتا چلوں کہ نواز شریف صاحب جب سروس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو اس دوران بھی انہوں نے جو ان سے ملاقات کی تو یہ کہا تھا کہ یہ جو شروع کرنے لگے ہیں کارڈ سسٹم یہ میرا ہے, یعنی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ہے. جی میں اس کا جواب دے دوں اگر آپ جانتے ہیں. نہیں, مقصد یہ ہے ہم آپ کو فرق بھی دکھا دیں گے کہ کارڈز کے اندر جو فرق ہے وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو دکھا دیں گے. کارڈ کا منصوبہ تو پیپل پارٹی والے بھی کہتے ہیں ہم نے شروع کیا, اور نون لیگ والے بھی کہتے ہیں, لیکن کامیاب ترین جو آپریشن ہوا یا جس طریقے سے کارڈ استعمال ہوئے وہ خیبر پختونخوا کے اندر, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کامیابی سے خیبر پختونخوا کے اندر کارڈز کا دینا, اجرا کرنا, اس کے بعد اس کی سہولتوں کو استعمال کرنا, لوگوں نے اس پہ بائی پاس کرائے ہوئے ہیں, غریب لوگوں نے اس کے اوپر لوگوں کی ڈیلیوری, سیزیرین سیکشن, یعنی باقاعدہ پراپر طریقے سے استعمال کیا گیا. اب میں آپ کو نون لیگ کا قصہ سنا دوں. کہنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی ہم نے کارڈ انٹروڈیوس کرا ہے. میں جب اپنے ڈپارٹمنٹ میں, ایک ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے,
मैं अब डिपार्टमेंट में आई तो मैंने उनसे कहा कि पहला काम जो हमने करना है वो है कि कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आप हमें बताइए कि जी हाँ, उन्होंने कहा जी इससे पहले 17 अजला के अंदर कार्ड दिए हुए हैं। तो मेरा ये था कि 19 अजला के अंदर मैंने कार्ड मज़ीद बांटने हैं। अब जब डिटेल सामने आई तो आप उस डिटेल की शुनीद ज़रूर कर लीजिए। 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसमें कार्ड्स दिए गए थे, जिसमें लाहौर भी शामिल है। और इम्पैनल अस्पताल भी ज़रूर याद रखिएगा कौन सा है, पता नहीं केड़ा अस्पताल है, शरीफ सिटी हॉस्पिटल। इम्पैनल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर शरीफ सिटी हॉस्पिटल है, फारूक हॉस्पिटल है, एक दो और है, लेकिन मेन हॉस्पिटल जो है शरीफ। इतने बहुत सारे और अस्पताल भी इम्पैनल हुए। उन अजला के अंदर से जब हमने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो पता चला कि 4 ऐसे अजला जिनका अब मैं नाम ले रही हूँ, इन 4 अजला में कार्ड बांट दिए गए। कार्ड बांट दिए गए, ना उनके प्रीमियम दिया और ना उनके पैसे दिए और ना उनकी सर्विस मिली। बेचारे लोग वो कार्ड गले से लगा के, कलेजे से लगा के फिरते रहे, उस पर सर्विस कोई नहीं मिली क्योंकि पैसे नहीं दिए हुए थे। ये सवाल जब मैंने पूछा तो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि जी मैडम इसलिए सर्विसेज नहीं हम शुरू कर सके क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। जब हुकूमत ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी क्यों वो दे, तो 4 ज़िले दे तो कार्ड सब, 3 ज़िले के अंदर इन्होंने सर्विस दे दी, कार्ड दे दिया, कार्ड भी दे दिया और कहा भी सर्विस भी दे दें गुडविल पे। और वो जो लायबिलिटी है वो मैंने आके निकाली, वो जिसका क्लेम वो कर रहे हैं ना, हमने कार्ड बांटे थे। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो अपने थे उनके पैसे जो थे वो तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए बने हुए थे लायबिलिटीज़ के, जो मेरे सामने उन्होंने पेश कर दिए। उन्होंने कहा जी असल में गुडविल पे कंपनियों ने, वो अस्पतालों ने अपनी सर्विस तो दे दी लेकिन हम उनके बिल नहीं पे कर सके, बिल हमने पे किए। अब मैं आपको बात बताऊं, देखिए मैं आपके साथ ना कोई गलत बात करूंगी, ना मेरी आदत है गलत बात, ना मैंने मुनाफकत की कोई बात करनी। उन्होंने एफर्ट किया, चाहे उसको उन्होंने एक पॉलिटिकल रंग देने के लिए किया। मैं आपको बता रही हूँ हमारा क्या एफर्ट है। हम जेन्युइनली चाह रहे हैं, इसको आप सियासी वो बना समझे, क्योंकि हमारी तरफ से ये कार्ड ये नहीं होना कि तहरीक इंसाफ के बंदों को दिया जाए। हमने हर गरीब आदमी को ये कार्ड देना है। हमने आपसे गलत बयानी नहीं करनी, जो हम कर रहे हैं आपको फेज वाइज बता रहे हैं। वजह यह है कि जब मैंने 3 अरब रुपए पुरानी लायबिलिटी को ख़त्म किया तो मेरे कार्ड्स जो हैं वो डिले हो गए इस दिसंबर के एंड तक। मेरे पास जो पैसे थे जिससे वो डिले हो गए, यानी मैंने जो 19 अजला में शुरू करना था वो डिले हो गए। नंबर 1 मकसद ये है कि मैंने इनसे पूछा आप ये बताइए जब आपने इतने अरबों रुपए दिए तो कार्ड कितने इस्तेमाल हुए? तो 2 साल के अरसे के अंदर 41,000। तीसरे साल में इन्होंने कहा कि जब लोगों को कुछ पता चला इस्तेमाल करने का तरीका तो 80,000 पे। पहले 2 साल 41,000 लोगों ने सिर्फ इससे मुस्तफीज़ हुए और फिर उसके बाद 81,000। देखिए आप एक चीज़ देते हैं, फिर उसके बारे में अगर आप इंस्ट्रक्शंस ना दें, आप उसकी मशहूरी ना करें। हमारा काम है जब हम देंगे तो हम लोगों को बार बार बताएंगे ये अस्पताल भी मौजूद है। आपके सामने मैंने कहा है कि जब एक बंदे के हाथ में कार्ड होगा तो जितने इम्पैनल्ड अस्पताल हैं, पंजाब के जितने इम्पैनल्ड अस्पताल हैं, उन सारे अस्पतालों में आप ये कार्ड ले जाके और अपना इलाज करवा सकते हैं। यू डोंट, एक सेकंड, मैं पहले एक सवाल इनका मुकम्मल जवाब दे दूँ। अब दूसरी बात जो सवाल बार बार आता है वो कहते हैं कि ये कार्ड तो हमने पहले भी दिया था। आपने ज़रूर दिया था। आपकी कार्ड की कीमत जो थी 2.5 लाख थी और 50,000 आपने स्पेशलाइज्ड केयर के लिए था। हम कार्ड दे रहे हैं 7,20,000 का। वी आर लुकिंग आफ्टर एवरी पॉसिबल नीड। एक मजदूर अगर बीमार हो गया तो 3 दिन की मजदूरी भी उसको मिलेगी। जी बताइए, एक वो बता दें पहले फिर आपकी बात। जी मैडम, तब भी ज़हीर साहब उस वक्त हेड थे इस जी प्रोग्राम के, आपने अकाउंटेबिलिटी की, इनसे पूछा जी क्या अकाउंटेबिलिटी की आपने? मेरी बात सुन रहे हैं? देखिए बस सुनने पहले, हाँ जी 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 इनकी अकाउंटेबिलिटी की आपने कि कोई प्रोग्राम क्यों फेल हुआ जी। अब भी आप इनको एड लगा रही हैं प्रोग्राम के, आप इतना बड़ा एक्सपेंड कर रही हैं। दूसरा, प्रीमियर कौन पे करेगा? आपने फेडरल से रिक्वेस्ट की है, मैडम प्रीमियर आपने फेडरल से रिक्वेस्ट की, वो आपकी डिक्लाइन होगी। उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे। वो बता रहे, वो कौन पे करेगा? अच्छा जी, मैं सबसे बड़ी ये बात बता रही हूँ, मैंने प्रीमियम के लिए और सारे पैसे रोक के तो प्रीमियम ही तो दे रही हैं।
आई मीन ये आपके सामने आई हूँ, मैं प्रीमियम दे रही हूँ, ऑलरेडी प्रीमियम भेज दिया मैंने। वजह ये एक सेकंड मैं आपको एक सेकंड, जहाँ तक ज़हीर साहब का ताल्लुक है मैं थोड़ा सी बताते चली जाऊँ। एक तो थोड़े जो बेचारे ब्यूरोक्रेट्स हूँ, दे आर बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इनका काम है कि गवर्नमेंट के साथ काम करें। इनकी अकाउंटेबिलिटी अगर करनी थी तो पिछली हुकूमत करती ना। मैंने तो इनसे जितनी अकाउंटेबिलिटी की तो इन्होंने मुझे बताया कि जी फ़लाँ चीज़ के पैसे नहीं दिए गए तो इसलिए हमें ये करना पड़ा, फ़लाँ चीज़ के पैसे नहीं दिए गए तो हमें ये करना पड़ा। और यहाँ 4 एरियाज़ में उन्होंने कहा कि कार्ड बांट दो, 4 एरियाज़ में कहा कार्ड बांट दो, तो वो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर के सामने कि हम नहीं बांटेंगे। मैं वैसे पूछ रही हूँ, शहबाज शरीफ को कहते हैं कि हम नहीं बांटेंगे जी। नहीं आप नहीं मेरे साथ देखिए, एक सेकंड आप मेरे सामने, मैंने तो आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, मेरे सामने तो ऐसे नहीं बट सकता ना, मैं आपसे गलत बयान करूंगी। वजह यह कि मेरे नाल तो तुहाडे आमना सामना रोजाना होना है, कोई एक दिन तो नहीं होगा कभी मैं किसी सड़क पर तुम मैं फड़ लाओगे, कभी मैंने किसी अस्पताल च फड़ लाओगे। मैं पागल है कि तुहाडे नाल इस तरह की गल करा जिन्होंने मैं दोबारा आंसर ना कर सका। नंबर 1 प्रीमियम जहाँ तक ताल्लुक है जी, ये तकरीबन 2000 रुपये बन रहा है, 2000 रुपीज़। गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डालेंगे, विच वॉज प्रीवियस जो इनका कार्ड था उसमें 1000 रुपया प्रोविंशियल गवर्नमेंट डाली थी, 300 रुपये जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट डाली थी। तस्वीर नवाज शरीफ की लगी हुई थी उसके ऊपर, आखिर बड़े भाई थे ना उनकी। लेकिन मकसद ये है कि ये प्रीमियम इसका फर्स्ट फेज़ का फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स हम दे रहे हैं, और हम उसका पूरा प्रीमियम बाकायदा बजट के ऊपर बैठ के मेरे पास 7 अरब रुपए हैं जो मैं इस वक्त अपने हेल्थ के, मैं कीमत पैसे भी दस रही हूँ, 7 बिलियन रुपीज़ जो मैं इस वक्त खर्च कर रही हूँ अपने कार्ड्स के ऊपर। और मैं बड़ी मशकूर हूँ कि मेरी बाकी मिनिस्ट्रियों में अपने पैसों में से उन्होंने कहा जी डॉक्टर यास्मीन को जितने पैसे चाहिए ना आप दें उनको। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम माई अदर मिनिस्ट्रीज़। उन्होंने कहा अगर इनको पैसे कम पड़े तो हमारी मिनिस्ट्रियों से भी निकाल के उनको दे दें। इसलिए हमारे पास इस वक्त 2.5 अरब रुपया उस दिन हमने निकाला, 4 हमने पहले रखा हुआ था, 50 करोड़ हमारे और आ रहे हैं, 7 अरब हमने रखा है। आपको मैंने ये बात नहीं की कि मैं आपको जुलाई तक कर दूंगी, मैंने आपसे बात की मैं 19 के एंड पे करूंगी। बजट आएगा, अगला आएगा ना जी बजट, मैं अगला बजट लूंगी। मेरी प्रायोरिटी ये है, मेरी प्रायोरिटी है, मैं तो मेरे नाल तुम लड़ते रहोगे तो मैं बिल्डिंग क्यों नहीं खड़ी की थी, मैं सड़क क्यों नहीं बढ़ाई, मैं पुल क्यों नहीं बढ़ाया, मैं नहीं बना रही, आई एम नॉट मेकिंग पुल। मैडम ये बताएं कि आप इंसाफ कार्ड सियासी बुनियादों पे दे रही हैं, गरीब परवरी के तौर पर दे रही हैं, सिर्फ बताएं किस पे क्या कह रहे हैं? सियासी बुनियादों पे बांटा जाएगा जैसे पहले? बिल्कुल नहीं, मैंने बिस्मिल्लाह इस बात से की, मैंने बिस्मिल्लाह इस बात से की कि बिल्कुल सियासी ग्राउंड पे नहीं बांटा जाएगा। सिलेक्शन जो हुई है गरीब आदमी की, जिसको वेरीफाई किया है, ऑथेंटिकेट किया है, आप पूरा यकीन रखें, कम से कम जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ इसमें कोई सियासी रंग नहीं आएगा। गरीब आदमी किसी भी पार्टी का हो, 7,20,000। हाँ जी, इनकम कितनी होगी जिस बंदे को कार्ड दिया? बेटा दो, ये तभी मैंने ये कहा था कि मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बाद में दिखा रही थी। एक सेकंड खाना भी है जी, तो नहीं है, शौकत खान नहीं रखा, लेकिन हम अभी वो क्या कहते हैं, एक सेकंड देखिए, इम्पैनलिंग का काम जो है ना वो करती है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। मेरा काम नहीं इम्पैनल करना, हमने उनको बताया कि हमें ये सर्विसेज चाहिए। अब जो सर्विसेज प्रेजेंट हैं जहाँ वो इम्पैनल कर रहे हैं। मैडम इसमें साफी शामिल है कि नहीं ये बता जी साफी शामिल है? हाँ, मैं आपको यही अगली बात बताने लगी हूँ। आपको मैंने अगली बात बताई ये थी कि मेरी पहली फेज में तुसी गरीब तो गरीब तरीन नहीं हो, ठीक है ना, नंबर 1 तो $2 तो ज़्यादा कमाते हो, ठीक है ना, गरीब नहीं। पर मैं मेरी आपसे कमिटमेंट है कि अगले फेज के अंदर जो इस साल के एंड में हम शुरू होगा, मैं आपके अलावा सारे प्रोफेशनल्स के लिए खान साहब से बात कर रही हूँ। वजह यह है कि एक उस्ताद, एक सेकंड नहीं, आप सबके अलावा मैं खान साहब से बात कर रही हूँ कि स्कूल टीचर्स हैं। देखिए, मिडिल क्लास की एक स्कूल टीचर जो है वो अगर महीने का 50,000 या एक आदमी 50,000 कमाता है, उसके घर में भी अगर कोई बीमारी आए, कोई मसला जी, मैं सेकंड फेज जो है
अगले हमने इंशाल्लाह सेकंड फेज़ के अंदर तकरीबन 30 लाख वो लोग जो पार्शली अपना प्रीमियम दे सकेंगे उनको शामिल करेंगे, और जो कि बहुत ऐसी छोटी रकम होगी, एनीबडी कैन अफोर्ड टू गिव इट, बट वी विल इंश्योर कि इंशाल्लाह हम अपनी जो मिडिल क्लास है, जिसके आप एक बहुत अहम सतून है सारे के सारे, हम इंशाल्लाह वी विल सी टू इट दैट आर जर्नलिस्ट ब्रादरी ऑल्सो गेट्स देयर कार्ड। ये आपने स्टेट लाइफ को जो है वो दिया है, ये सारा प्रोग्राम स्टेट लाइफ की अपनी जो गुडविल है वो पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। नहर के अंदर भी केसेस चल रहे हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस जो अमूमन पंजाब के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रुप इंश्योरेंस भी स्टेट लाइफ के पास है, और उसका भी स्कैंडल चल रहा है। इसके बावजूद आपने स्टेट लाइफ को ही क्यों चुना? अच्छा बेटा, आपने बड़ा अच्छा एक वैलिड सवाल किया है। अगर हमारा एक्सपीरियंस स्टेट लाइफ के साथ ख़राब होता ना, तो हमने कभी 5 साल के एक्सपीरियंस में जो हमने शुरू किया खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ भी जो कंपनी थी वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस थी। हमें तकरीबन वो कहते हैं ना कि जी 5% भी शिकायत नहीं है। लोगों ने इस्तेमाल किया कार्ड, और आज अगर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जीती है विद बम्पिंग मेजॉरिटी, इज़ वन ऑफ द रीजन वॉज कि गरीब आदमी की ज़िंदगी इसलिए बेहतर हो गई तो हाथ में क्रेडिट वो ये कार्ड मिल गया। अब आ गया मसला आप जो फरमा रहे हैं ना, ये कोई हमारा उनके साथ कोई ये थोड़ी है कि हमारा कोई उनके साथ निकाह हो गया। इफ़ दे डू नॉट कम अप टू आवर स्टैंडर्ड्स, देयर आर वी हैव पुट इन क्लॉजेस इन विच दे विल ऑल्सो बी पेनलाइज्ड ऑन दिस। अंडर नो कंडीशन, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, आप लोगों के पैसे हैं, आप सारे टैक्स पे करते हैं, मैं टैक्स पे करती हूँ, ये हमारे पैसे हैं, हम एक एक आने का हिसाब भी लेंगे और एक एक आने का ख्याल भी रखेंगे। लेकिन मैं आपको पूरी यकीन से कहती हूँ, ना हमारी नीयत में कोई बदी है, ना हम किसी गलत सोच से ला रहे हैं। मैं कम से कम इसको बतौर सियासत नहीं कर रही। आपको भी पता है, आप मेरा ख्याल है बहुत सारे जो हैं वो मेरे सामने ही जवान हुए हैं और बूढ़े हुए हैं, यहाँ जितने माशाल्लाह सहाफ़ी बरादरी बैठी हुई है यहाँ। और आपको पता है कि एक मेरी ज़िंदगी का पैशन था कि अल्लाह ताला कोई मौका दे हमें कि हम गरीब आदमी के लिए हस्पतालों में हालात बेहतर करें। जी क्या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन देखें जी, ये इसके ऊपर जो वो नेशनल अब जो हमारी है एक सर्वे जो कंपनी है वो आपको दिखा देते हैं, उसका नाम दे एक्चुअली डू सर्वेस। 2011 में सर्वे हुआ था और पिछले साल से दोबारा सर्वे शुरू हुआ है, और जिन इलाकों में हम दे रहे हैं उनकी जब लिस्टें हम भेजते हैं तो वहाँ के इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को ड्यूटी लगा दी गई है कि आप बाकायदा इसको ऑथेंटिकेट करें और पता करिए कि ये जो हमारे पास लिस्ट आई है लोगों की, क्या ये सही लिस्ट है। फिर एक उनको और एक नादरा के थ्रू हम बाकायदा ऑथेंटिकेट, हर वो बंदा जो $2 से कम पैसे कमाता हो उसको ये इनिशियली कार्ड दिया जाएगा। $2 से कम का मतलब है का 300 महीने का 15,000, जिससे ऊपर जो 25,000 या 30,000 तक कमाता है उसको नहीं दिया जाएगा। आपने बिल्कुल बेटा, ये तो बड़ी सही बात आपने कही है। मैंने तो आपको नहीं, मैं आप देखो बेटा, एक मिनट, आपको पता है कि हमने अपने अस्पतालों के अंदर, मैं जिस दिन की आई हुई हूँ, मैं आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। इससे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आई कि मैंने कहा जब तक मैं गली गली फिर के पहले अस्पतालों के हालात देख ना लूँ, हर चीज़ समझ ना लूँ, मैं वरना थोड़े जवाब कितों देंगी, मैं जवाब दे सकनी है। तुम जिस तरह सवाल पूछते हो, मैंने आपको बताया है कि पहला काम हमने ये किया कि हमने अपने सारे अस्पतालों की इमरजेंसी की रीवैम्पिंग के पैसे मैंने अलहदा रखे, रीवैम्पिंग के बाकायदा पैसे हम दे रहे हैं, इमरजेंसीज़ के अंदर रीवैम्पिंग हो रही है। आज सुबह जिस मीटिंग में मैं बैठी हुई थी, हम पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि इमरजेंसी में मेडिसिन मिले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी आपके इंडोर के वार्ड्स में दवाइयाँ मिलें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक खातून जब लेबर में आती है उसको किसी किस्म की कोई दवाई बाहर से ना लानी पड़े और सारी दवाइयाँ अस्पतालों के अंदर मिले। इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि जिस बंदा 25,000 कमाता है या 30,000 कमाता है उसकी भी ज़िंदगी उतनी मुश्किल है, पर मैंने आपको कहा था कि वो हम सेकंड फेज़ में करेंगे और ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका भी उतना ही बड़ा हक है जितना जो 15,000 रुपये कमाता है। लेकिन कोई ना कहीं हमने कट ऑफ पॉइंट करके इस पर काम करना शुरू करना था, तो हमने पहले इस फेज़ पे किया, अब आगे जी ना। मैडम बात ये कि ये जो क्राइटेरियन पूछ रहे हैं ना वो ये है कि
ये BISP से डाटा लिया गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। वहाँ जिन लोगों को वो एड दी जा रही है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो पहले उन सबको वो सब लोग इसमें शामिल हैं, उसके बाद जो है वो डिप्रिसिएशन वगैरह। लेकिन आई एग्री विद यू, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज अ मच लार्जर नंबर देन दिस। ये भी मैं पंजाब की बात बता रही हूँ, इज अ मच लार्जर नंबर देन दिस। हम अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करें कि ये ना हो ना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे पिछले 5-10 साल से वो रह रहे हों और आज वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद घर में 1-2 बंदे पढ़ लिख गए, काम करना शुरू कर दिया एंड दे आर आउट ऑफ दैट, तो उनको भी हम दे दें। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग ऑथेंटिकेटेड। कि हम ऑथेंटिकेट करें, कोशिश तो ये है ना कि गरीब आदमी को इस गुर्बत का जो ये है उसमें से बाहर निकाला जाए। सो द आइडिया इज़ कि वी विल बी चेकिंग अप ऑन एवरीथिंग। इस पर बाकायदा सैम्पल चेक होंगे, हम चेक करेंगे, डॉक्टर्स चेक करेंगे, यहाँ तक कि DG हेल्थ जब इन्होंने इम्पैनल किया तो मेरा ख्याल है इतनी डिटेल में तो कोई मिनिस्टर नहीं गया होगा। मैंने अपनी DG हेल्थ को बमा टीमों के भेजा, मैंने कहा ये 23 अस्पताल ये अभी इम्पैनल हुए हैं, आप मेहरबानी करके सारे अस्पताल चेक करके आए, क्या ये अस्पताल हैं और अगर हैं तो किस किस्म की सहूलत है। जी PIC भी एक अच्छा दायरा है, सरकारी दायरा शामिल किया आपने उसमें। जी बेटा, सरकारी अदारे जो हैं, एक सेकंड नहीं, मैं आपको बताऊं, सरकारी अदारे जो हैं वो तो पहले ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो भी प्राइवेट है, एक सेकंड, दवाइयाँ आपको बाहर से लानी पड़ती हैं हॉस्पिटल्स में, आपको एक्सरे के बेटा एक सेकंड, मेरा ख्याल है सबसे PIC की अगर आप लिस्टें देख रहे हो तो 2 साल बाद बाईपास की लिस्ट आती है, अगर आप उसको फ्री कहती हैं तो वो किस तरह से? देखिए मैं जिला हॉस्पिटल में आप कार्डियक सर्जरी करवाने चले जाए आपको 3 साल के बाद जी, इनको भी जब हम अब लाहौर की तरफ आएंगे और इन बड़ी इंस्टीट्यूशंस की तरफ इनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तभी तो मैंने आपको बात कही कि स्टेंट की बात की, तो स्टेंट किसको मिलना है? मैं जब स्टेंट की बात की तो किसकी बात की? मैंने इन्हीं चीज़ों की कोशिश की है। और दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी पूरी कोशिश है, आप लोग देखें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर हम पाकिस्तान का सारा बजट जो है ना वो भी सेहत पे लगा दें, एंड ऑफ द डे हम किसी को 100% इलाज किए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी नहीं कर सकती। हम इस अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी तो कोई और नहीं है, अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी तो कोई और नहीं है। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस सिस्टम। मकसद ये है कि आपके सामने हम एक जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं और मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि एक दफ़ा भी फ़ोन, आपको पता है मैंने हेल्पलाइन शुरू की, कंप्लेंट लाइन शुरू की, उसके ऊपर जवाब पूरी, मतलब इस वक्त पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ एक काम कर रहा है कि कोई गरीब आदमी आए और बाकी वो अफोर्ड ना कर सके तो उसको हम फ्री सहूलत दें। बाकी देखें, आप गंगाराम अस्पताल चले जाएं, आप सर्विसेज अस्पताल चले जाएं, इमरजेंसी में जाएं, आपको सारा ट्रीटमेंट, आप दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में चले जाएं ना, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के बाद वो बिल दे देते हैं, आपको बिल भिजवा देते हैं कि ये बिल है आपका। तो ये तो बड़ी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान और इस वक्त हुकूमत पंजाब पूरी एफर्ट कर रही है कि सेहत की जहाँ तक सहूलत है हम मैक्सिमम सेहत की सहूलत दे सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसमें मदद करें। वजह ये मैं तो किधर दौड़ी नहीं जा रही, ना मेरा इसी आपकी मदद करते हैं, हम आपको बताते हैं कि फलां अस्पताल में फलां मशीनरी खराब है, आपके तर्जुमान कहते हैं कि वो मशीन ठीक हो चुकी है। नहीं बेटा, मैं आपकी खबर आई, देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी खबर आई, मैं यहाँ नहीं थी, मैंने एक सेकंड नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा हमारी तीनों मशीनें खराब हैं। उन्होंने कहा मैं अगर गल कर लवा मुकम्मल गल तो करन देता करो ना, ये तो गल भी नहीं करन देंगे तुसी लगना। मैंने आप लोगों ने खबर दी, मैंने इमीडिएटली उस पर नोटिस लिया, मैंने पर्सनली फ़ोन किया। आज हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आज सेक्रेटरी के साथ मैंने मिलके कोई मशीन किसी किस्म की आप लोगों की खबर आएगी, इट विल इमीडिएटली गो ऑन टू द बेस्ट ग्रुप। आई एम लीडिंग दैट व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इसलिए, हमने सिर्फ ये कहा कि मशीन अगले 2 दिन के अंदर सर्विसेज अस्पताल सिम्स में लग जाएगी। नंबर ये भी है कि जिना में मशीन चल रही है, वो तो 4-6 माह से खराब है, जनरल की दोनों मशीनें खराब हैं। आप बिल्कुल, आप बेटा बिल्कुल, इससे ये है कि जब मशीन जो है दी जा रही है, आपको रिपोर्ट दी जा रही है, हम आपको ये कह रहे हैं। मैं तो रिपोर्ट देने लगी है ना, मैं तो क्या जी, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तीनों अस्पतालों में मशीनें खराब हैं, हम उनकी रिपेयर करवा रहे हैं
اور جہاں تک سروسز کا تعلق ہے سمز میں ہم دوبارہ مشین لگائیں. اگر اب ایک سیکنڈ کارڈ ریلیٹڈ اور اگر سوال نہیں ہے تو ہم سے گل مکا دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو.